Education has revolutionized due to invention of material like paper, ink, books, and further due to interaction of physical sciences with education through use of radio, TV, films, computers, satellite, language labs, etc. Education technology includes all systems which are used in the process of developing human capability. It aims at improving performance by creating, using, and managing appropriate technological processes and resources. Instructional technology is usually taken as a sub-part of educational technology, but there are subtle differences. Instructional technology is that technology which covers the process and systems of learning and instructions. It helps us to solve the educational challenges related to passing the information to the learner both in the classroom as well as in the distance learning environment. Actually, instructional technology is the hardware approach of the educational technology. It has developed over time and it has changed over the years. आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, जो कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की एक डिफरेंट फॉर्म है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी से किस तरह से डिफरेंट है, टीचिंग टेक्नोलॉजी से किस तरह से डिफरेंट है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसको हम इंस्ट्रक्शंस को लर्नर तक पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं, यानी निर्देशों को लर्नर तक कैसे पहुंचाया जाए उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। आज हम लेसन में पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसका कंटेंट यानी इसकी विषय वस्तु, assumptions यानी कि मान्यताएं, और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के डिफरेंट टाइप्स, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग टेक्नोलॉजी, एंड वी विल ट्राई टू डेवलप ए क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ इट। Before going further, let us try to understand what are instructions. Instructions mean systematic actions which induce learning. According to AECT, all those activities which are structured by someone other than the learner and oriented towards specific ends are called as instructions. यानी instructions वो एक्टिविटीज हैं, वो क्रियाएं हैं जो लर्नर के सिवाय किसी और के द्वारा की जाती हैं और जिनको करने का कोई विशेष उद्देश्य रहता है। Instructions, they have an important role in human learning and they stand for development of knowledge and beliefs. Usually instructions को यूज किया जाता है knowledge और beliefs को develop करने के लिए। Instructions में जो communication of information है that is very important. हर तरह की टीचिंग में कुछ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है और ये कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं कि टीचर से ही हो, टीचर के सिवाय कुछ और साधनों के द्वारा भी इस इंफॉर्मेशन को लर्नर तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे हम ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि इस लर्नर को गाइड किया जा सके। सिमिलरली कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज में हम प्रिंटेड मटेरियल को यूज़ करते हैं या टेलीविज़न या इंटरनेट को यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शंस को लर्नर तक पहुंचाने के लिए। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन हार्डवेयर अप्रोच, क्योंकि इसमें कई तरह का हार्डवेयर यूज़ होता है, इसलिए ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी की हार्डवेयर अप्रोच के साथ रिलेटेड है। एक और डिफरेंस है इंस्ट्रक्शन और टीचिंग में, दैट इज इंस्ट्रक्शंस आर वेरी केयरफुली मैप्ड, और इनको बहुत सोच समझ के इस तरह से बनाया जाता है कि ये अपने स्पेसिफिक एंड्स को यानी उद्देश्य को पूरा कर सकें। एंड बेसिकली यूजुअली दे आर developed for development of knowledge and beliefs. Let us try to understand what is instructional technology. Educational technology and instructional technology, these terms they are sometimes used interchangeably, but it is very important that educator must understand the difference between them so that they can use instructional technology better for planning and implementation of instructions.
According to AECT, instructional technology is the theory and practice of design, development, utilization, management and evaluation process and resources for learning. यानी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को आप एजुकेशन के डिज़ाइन के लिए, डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन, मैनेजमेंट के लिए या इवैल्यूएशन के लिए या रिसोर्सेज के लिए, इवैल्यूएशन के लिए आप इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर सकते हैं. Instructional technology has been defined as the application of modern skills and techniques to requirements of education and training. आमतौर पे ट्रेनिंग के साथ भी इंस्ट्रक्शंस को जोड़ा जाता है. It includes the facilitation of learning by manipulation of media and methods and control of environment. इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में हम मीडिया को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं जिससे हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं. Hence, instructional technology, it refers to the use of technological processes as a tool specifically for teaching and learning which facilitates access to information of all types. यानी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी वो सब तरीके हैं, वो सब टेक्नोलॉजी है जिसको हम टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में इस्तेमाल में लाते हैं ताकि लर्नर हर तरह की इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर सके. इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एक टूल की तरह वर्क करती है. टीचिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन टीचिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं कुछ प्लान्ड होती हैं, कुछ अनप्लान्ड होती हैं, जबकि इंस्ट्रक्शंस की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं दे आर वेरी प्लान्ड एंड दे कंट्रीब्यूट टू द स्टूडेंट्स लर्निंग बिकॉज दे आर मैप्ड इंटेंशनली. टीचिंग इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दोनों तरह से हो सकती है, प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों तरह की हो सकती है, जबकि जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये हमेशा ही इंटेंशनल होती हैं और वेरी वेल मैप्ड या प्लान्ड होती हैं. Another difference is that in education we are more concerned with the content, whereas in instructional technology we are more concerned with the technology which is used as a tool. तो इसमें जो ज़्यादा जो हमारा फोकस है वो डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ लर्निंग सिस्टम रहता है जिसमें हम तरह तरह से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हैं, जबकि एजुकेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम के बारे में बात की जाती हैं जिससे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके. A network of techniques or devices which are based on psychological and scientific principles and are used to achieve a set of learning objectives is instructional technology. So this is another definition for instructional technology कि इसमें हम बहुत सारे टेक्निक्स और डिवाइसेस को यूज़ करते हैं और ये जो टेक्निक्स और डिवाइसेस हैं ये साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं और इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. तो ये सब जो है ये इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का पार्ट रहता है. Primary goal of using instructional technology is to enhance teaching and learning process. Let us study about different types of instructional technology, that is instructional technology for mass instruction and instructional technology for individual instruction. जब हम instructional technology को use करते हैं बहुत बड़े ग्रुप को instructions देने के लिए, then it is mass instructions जिसमें हम use करते हैं systems like broadcasting, टेलीविज़न या ऑडियो वीडियो लेसन है, CCTV है, मोशन पिक्चर्स हैं जिससे हम बहुत बड़े ग्रुप को इकट्ठा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. इसको हम यूज़ कर सकते हैं इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस के लिए भी जिसमें हम यूटिलाइज करते हैं टीचिंग मशीन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ऑटो ट्यूटोरियल सिस्टम, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, लैंग्वेज लैब्स या लर्निंग मॉड्यूल्स को, जिससे हम अलग अलग इंडिविजुअल को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं. So these are the two different types of instructional technology. Chief exponents of instructional technology are B.F. Skinner, Bruner, Glaser, Gilbert and Meagher और इनके द्वारा दिए गए मॉडल्स और इनके द्वारा वर्क को हम आइंदा आने वाले लेसन में और अच्छी तरह से समझेंगे.
Let us try to understand what are the characteristics of instructional technology. Instructional technology in comparison to educational technology is a narrow concept. Educational technology का concept ज़्यादा broad है, ज़्यादा wide है, ज़्यादा comprehensive है. इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इसके कंपैरिजन में नैरो स्कोप रखती है और ये सिर्फ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के एक पार्ट के साथ डील करती है, इंस्ट्रक्शंस के साथ डील करती है. और इसके साथ साथ इसके जो गोल्स हैं दैट इज ऑल्सो नैरो. एजुकेशन टेक्नोलॉजी गोल प्रोवाइड करती है नेशनल लेवल पे, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी गोल्स प्रोवाइड करती है लोकेलिटी के लेवल पे और स्पेसिफिक लर्नर के नीड्स के अनुसार. It provides support in definite part of the curriculum to the student at regular interval. अगर एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो जनरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है टीचर को, और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी ये डेफिनेट पार्ट ऑफ करिकुलम यानी करिकुलम के एक हिस्से के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है. मॉड्यूल्स जो हैं वो करिकुलम के डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं और इसमें स्टूडेंट को रेगुलर इंटरवल्स पे डिफरेंट तरह के मॉड्यूल्स प्रेजेंट करने की ज़रूरत होती है. फीडबैक एंड इवैल्यूएशन इज वैलिड एट माइक्रो लेवल. तो इसमें जो फीडबैक जहाँ मिलता है या जो इवैल्यूएशन की जाती है दैट इज एट माइक्रो लेवल, जबकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जो फीडबैक है वो मैक्रो लेवल पे है. एजुकेशन टेक्नोलॉजी में एकेडमिक परफॉर्मेंस को लर्नर के नेशनल या रीजनल लेवल के गोल्स के अनुसार उसको परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है. Whereas in instruction technology, academic performance of learner can be determined even in terms of specifically laid terminal behavior which can be assessed at the end of every lesson. यानी इसमें आप फीडबैक और इवैल्यूएशन हर लेसन के बाद और इवन लेसन के सब कंटेंट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, जबकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो फीडबैक है या इवैल्यूएशन है ये एक नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे या एट द एंड ऑफ द completing the curriculum या एंड ऑफ द completing the syllabi of a particular class के बाद किया जाता है. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ cognitive domain can be achieved. In teaching technology we have studied कि अफेक्टिव, साइकोमोटर और कॉग्निटिव तीनों डोमेन्स में टीचिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन को अचीव करने के लिए. जैसे हमने पहले पढ़ा था, इट इज़ यूज्ड टू असेस द नॉलेज एंड बिलीव्स बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ प्रिंसिपल. तो जैसे बाकी टेक्नोलॉजी हैं ये भी साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हैं, जिससे हमें कंटेंट के बारे में या सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है. रीइंफोर्समेंट ऑफ राइट रिस्पॉन्सेज इज बेस्ड ऑन कंडीशन रिस्पॉन्स. तो जो कंडीशन रिस्पॉन्सेज हैं उनको रीइंफोर्स किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी. तो ये जो कंडीशन रिस्पॉन्स हैं दे आर स्ट्रेंथन्ड बाय instructional technology and that is used for reinforcement of right responses. Learning takes place as per level, need, speed, understanding, learning style and ability of learner. That is, it helps in providing learner-centered education. तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसको एज पर लेवल डिवाइस कर सकते हैं लर्नर के डिफरेंट नीड्स के अनुसार. लर्नर अपनी स्पीड पे सीख सकता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है. डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के लिए इसको डिफरेंट तरह से मॉड्यूलेट किया जा सकता है, यानी लर्नर अपनी एबिलिटी के अनुसार डिफरेंट तरीके से सीख सकता है. यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं लर्नर के उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी. It is used during pre-service teacher training by introducing different communication models, theories and explanation. तो ये यूज़ है इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का कि इसको प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग में भी यूटिलाइज किया जाता है.
ताकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये प्रमोट करे क्वालिटेटिव ट्रेनिंग को टीचर्स की, जिसमें टीचर्स इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस को सीखें। तो प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग में डिफरेंट कम्युनिकेशन मॉडल्स और थ्योरीज और उनकी एक्सप्लेनेशन को टीचर को सिखाया जा सकता है, टीचर को ट्रेन किया जा सकता है बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, जिसमें इंक्लूड करते हैं प्लानिंग, राइटिंग फ्रेम्स एंड इवैल्यूएशन जैसे स्टेप्स, लीनियर प्रोग्रामिंग है, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है, लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस है या कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस है। So these all are different types of instructional programs which forms the content of instructional technology. Different assumptions on which instruction technology is based are learner can learn according to his needs and capacity, यानी हर लर्नर अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार सीख सकता है। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ टीचर इज नॉट नेसेसरी फॉर द लर्नर टू लर्न, जरूरी नहीं है कि वो टीचर से ही सीखे या टीचर के प्रेजेंस में ही सीखे। इवन विद द हेल्प ऑफ टीचिंग मशीन द लर्नर कैन प्रैक्टिस एंड they can learn even without the teacher. Instructions can be used to provide continuous reinforcement. Instructions के द्वारा भी reinforcement की जा सकती है, लर्नर को जो सही रिस्पॉन्सेज हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है और इसमें हम कंडीशनिंग रिस्पॉन्सेज को यूटिलाइज करते हैं। टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू टीच प्रेजेंट वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर, तो टेक्नोलॉजी को सब्जेक्ट मैटर के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स कैन बी यूज टू अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाई जा सकते हैं, अलग अलग टैक्टिक्स यूज किए जा सकते हैं ताकि हम इंस्ट्रक्शंस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, यानी इसमें काफ़ी वैरायटी क्रिएट हो सकती है। External learning conditions can be created by arranging the elements in the logical sequence. तो अगर हम जो लर्निंग करवा रहे हैं उसके एलिमेंट्स को लॉजिकल वे में सीक्वेंस कर लें तो इससे लर्निंग की एक्सटर्नल कंडीशंस प्रोवाइड की जा सकते हैं, यानी मोटिवेट किया जा सकता है लर्नर को, उसका अटेंशन कैप्चर किया जा सकता है और लर्नर को एक्सटर्नल लर्निंग कंडीशंस प्रोवाइड की जा सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज कैन बी यूज टू प्रोवाइड फीडबैक टू द स्टूडेंट, और इसके द्वारा लर्नर को फीडबैक भी प्रोवाइड किया जा सकता है। सो विद दिस वी हैव स्टडीड दैट इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी which includes instructional designs, which includes different modules which are used for smart classrooms, which includes different teaching materials which can be mapped and where the teaching machines can be used, that utilizes instructional technology.